जहां पर समझ में नहीं आया बेटा पूछ लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पैरेलल ग्रुपिंग। Parallel grouping of resistors। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है समझिए। लेट्स से when the resistors are connected, sorry, parallel grouping of cells 1 2 it is something like this. Cell is E1, resistance is R1, cell is E2, resistance is R2। ठीक है, अब समझिए आगे। Let's say it is connected here and here. This is terminal A, this is terminal B. Now when we are saying they are having a parallel combinations, so first of all the potential difference across the point A and B, तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो potential difference मिलेगा that is equals to EMF equivalent, right? So let's say potential difference between point A and B is equals to equivalent EMF। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि let's say यहाँ पर E1 और E2 these are the two cells which are connected in a parallel combination, and if one of them is having a higher potential, let's say E2 is having a higher potential, right? मतलब E2 का potential ज्यादा है E1 की comparison में, right? So we can say current is flowing in this direction. Let's say the flow of direction of current is this, right? Current is I. Now we can say E2, this is minus plus minus. Let's say E2 plus IR2 plus IR1 minus E1 equals to 0, right? We can write it like this. By KVL, Kirchhoff's voltage law हमने apply किया rule, loop rule, right? अरे yes or no बेटा? So now we can say that E2 plus I into R2 plus R1 equals to E1, and I times of R2 plus R1 is equals to E1 minus E2. So we can say the current I is equals to E1. Current I is equals to E1 minus E2 by R1 plus R2. Any doubt? Okay. Now let's say if we take is equals to equivalent EMF is equals to, अब आप बताइए यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन दिस, तो VAB को क्या लिखेंगे? E1 माइनस IR1, यस और नो? अरे यस और नो बोलो जल्दी से, क्या ये इक्वेशन बनेगी बेटा हमारी E1 माइनस IR1? Yes, sir. Now we can write equivalent EMF is equals to E1 minus IR1. So E1 minus I, the value of current I, which is E1 minus E2 by R1 plus R2. So let's say E1 minus E2 by R1 plus R2 into R1. Fine. So we can say this equivalent EMF can be written as E1 by R1 plus E2 by R2 by 1 upon R1 plus 1 upon R2. Got it, everyone? Now this 1 upon R1 plus 1 upon R2. So we can say 1 by R equivalent, 1 upon R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R equivalent क्या हो जाएगा बेटा? 1 upon R1 plus 1 upon R2. And this E1 by R1 plus E2 by R2, this is your
equivalent EMF we can say. So let's say this is, ये formulas बेटा आप याद रखिएगा, ठीक है, कि parallel combinations में if two cells are connected then equivalent EMF is E1 by R1 plus E2 by R2 by 1 upon R1 plus 1 upon R2. And equivalent resistance की अगर हम बात करें, so 1 by R equivalent equals to 1 by R1 plus 1 upon R2. Fine. Now let's say if n number of cells are connected in a parallel with the same polarity, n number of cells are connected. Fine. So for that we can say if n cells are connected, if n cells are connected in parallel with same polarity, so what we can write, that equivalent EMF is equals to beta E1 by R1 plus E2 by R2 plus up to n number hai, so En by Rn. Similarly, for the resistor we can say 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to 1 by Rn. Fine. And accordingly 1 by R equivalent is also we can say 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to 1 by Rn. बोलो कोई डाउट? Now let's say if the cells, here we have we are saying n cells are connected. What we are saying, n cells are connected. But now if we say this n cells are connected with the they are having a same EMF, or you can say they all are identical, right? So let's say if n cells are identical, if n cells are identical, so n identical cells के लिए equivalent circuit can be like this. This is E, this is R. So first of all, we can say equivalent. So E by R plus E by R plus up to E by R means n times of E by R. So we can say equivalent EMF is equals to, if n identical cells are connected, so n times of E by R by 1 by R plus 1 by R plus 1 by R for the n times. So we can say it is n by R. Yes or no? So R cancel and n cancel. So equivalent EMF बेटा कितना आ जाएगा? So equivalent EMF is E. Got it? Yes or no? And if we talk about 1 upon R equivalent, so 1 by R equivalent is equals to 1 by R equivalent is equals to क्या आ जाएगा? 1 upon n by R. So ये हो जाएगा R by n. Yes or no? So R equivalent is n by R. Got it, everyone? This is for the identical cells. Anyone has any doubt in this? No. No, sir. Now let's say here we have taken this cells, they are connected in a with the same polarity. Now if we talk about them and let's say if they are connected with the opposite polarity, the cells are connected in a opposite polarity. So let's say parallel grouping of cells with opposite polarity. Let's say parallel grouping of cells parallel grouping of cell with opposite polarity.
right? Let's say सेम सर्किट है, चेंज क्या है बेटा कि दे आर हैविंग अ ऑपोजिट पोलैरिटी, तो यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो हम चेंज करेंगे, राइट? सो लेट्स से this is negative and this is positive, this is negative and this one is positive, got it? So this is the change, like this positive negative or ye negative positive, so we can say it's the opposite polarity, yes or no? Now if we take the current in the same direction, let's say same loop we are considering and the current I is flowing in this, right? So what we can say, the potential difference across the 2 points A and B, this is E1, this is E2. So let's say we start from here, this point. So let's say minus E2, then plus IR2 plus IR1 minus E1 equals to 0. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Now we can say I into R1 plus R2 is equals to minus E1 इधर जाएगा, minus E2 भी उधर जाएगा, तो E1 minus E1 हो जाएगा plus E1 और minus E2 हो जाएगा plus E2. बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो I into R1 plus R2 is equals to E1 plus E2. So we can say the current I can be represented as, let's say current I is E1 plus E2 by R1 plus R2. Clear? Now if we need to find the potential difference between the points A and B, so we can say the potential difference between points A and B is equals to, let's say equivalent EMF is equals to E1 minus IR1. Let's say this way. Let's say if we go this way, fine. तो कितना आ जाएगा बेटा? It is equivalent is equals to E1 minus IR1. Yes or no? क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Now we can say equivalent EMF can be written as E1 minus IR1. Sorry, E1 minus IR1. The value of I is here. Value of I is here. Let's say it is E1 plus E2 by R1 plus R2 into R1, right? So we can say equivalent EMF is equals to E1 minus okay, this is going to be equivalent EMF is equals to E1 by R1 minus E2 by R2 by 1 upon R1 plus 1 upon R2. So now you can see here what things have changed in this. क्या चेंज हुआ? इससे पहले हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, उसमें क्या था बेटा? वो सेम पोलैरिटी थी और सेम पोलैरिटी में हमने क्या लिखा था? E1 by R1 plus E2 by R2 लिखा था। यहाँ पर जिस सेल के पास में ऑपोजिट पोलैरिटी, क्या उस सेल के पास में हमने माइनस साइन लिया है? यस और नो? राइट? दोनों फॉर्मूला में सिर्फ चेंज कितना आया कि वहां पर E1 by R1 plus E2 by R2 था सेम पोलैरिटी में, यहाँ पर क्या है? E1 by R1 minus E2 by R2. That is the only change with opposite polarity. Clear है? Now we can say 1 by R equivalent is equals to 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Clear है सभी को? 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 upon R2. Now, if we say, let's say cells are connected in parallel. If n number of cells are connected, if n cells are connected,
and any of them is connected with the opposite polarity. If n cells are connected, और मान लीजिए suppose हमने n cells लिए, उसमें से बेटा कोई भी एक cell अगर ऐसा है जिसकी opposite polarity, then क्या करेंगे? For example, let's say we are writing equivalent EMF is equals to E1 by R1 plus E2 by R2. मान लीजिए थर्ड आपका ये है जो कि opposite polarity, तो we will write minus E3 by R3. अगर फोर्थ है तो माइनस E4 by R4, अगर नहीं है तो प्लस E4 by R4, right? Plus up to En by Rn. And if we talk about the resistance, then we can say 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and plus up to 1 by Rn. बोलो क्लियर है? Yes, sir. यहाँ या ना? Right? So 1 by R equivalent, 1 upon R equivalent is equals to क्या हो जाएगा? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on plus 1 by Rn. Clear यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Now if we say, okay, now let's say mixed grouping of the cells. यहाँ तक clear है बेटा सभी को? यहाँ तक clear है सभी को? बस इतना याद रखना है बेटा कि जहां पर भी opposite polarity आएगी, opposite polarity आ रही है तो आपको उसके आगे negative sign ले लेना है. That's it. Clear? Now let's say a mixed grouping of identical cells. Mixed grouping का मतलब ये है बेटा, there are few cells which are connected in series and there are few cells, मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कॉम्बिनेशन है 1 2 1 2 1 2, एक सीरीज है. इस सीरीज का कॉम्बिनेशन हमने 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे हमने कैसे लगाया है? पैरेलल में लगाया है. समझ में आया मैं किस तरीके के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ बेटा? कि हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें ऊपर की फर्स्ट सीरीज है, पहली लाइन जो है पूरी सीरीज में सेम एज इट इज सीरीज, फिर एज इट इज सीरीज, एज इट इज सीरीज, बट जो सीरीज में है ये रेजिस्टर्स क्या वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है? यस और नो? अरे यस और नो? राइट. सो लेट्स से मिक्स ग्रुपिंग मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स हो गए. सीरीज एंड पैरेलल दोनों क्या हो रहे हैं बेटा? मिक्स हो रहे हैं. तो लेट्स से मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स. Mixed grouping of cell. ठीक है? So let's say सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सेल और रजिस्टर लिया, एंड सो ऑन. ठीक है? सेम सर्किट, अरे सेम थिंग को रिपीट कर रहे हैं. अगेन इट विल बी रिपीटेड. So let's say they are connected in this way. ऐसे जैसे this is E, E, R, E, R, they all are identical, right? E, R, E, R, E, R, E, and R, right? तो ऐसे n number of cells connected हैं. कितने? सीरीज में n number of cells are connected, and इस तरीके से m number of cells are connected. m सीरीज है ऐसे. समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, sir. Now let's say एक काम करता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी, इसी को ले लेते हैं बेटे. Fine, something like this. And now let's say these are
connected with the switch having a resistance R. क्लियर है? तो एक इस तरीके का सर्किट हमने बनाया है, दिस मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पहले मुझे. Let's say this is point A and let's say this is point B. ठीक है? Clear? So ये N rows है, N rows and M column. Clear? So now, and they all are identicals. They all are identical. So first of all, we can say this this equivalent. इसका equivalent बेटा क्या हो जाएगा? इसका equivalent क्या हो जाएगा? N number of cells are connected and they all are identical. तो N times of EMF हो जाएगा. They are connected in series. और resistance कितना हो जाएगा? तो N times of R हो जाएगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, So sir. let's say अगर मैं इसका एक equivalent circuit बनाना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Let's say this is N number of cells are connected, so it is say N times of E. These are connected internal resistance N times of R, and the same circuit is repeated here. Same circuit is repeated here. बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ है ना? Yes. सेम यहाँ पर भी रिपीट होगा. बोलो ठीक है? And we are going in this way for M times. N and there is a, let's say we can say that the switch is connected here having an external resistor R. Okay, so now we can say छोटा करता हूँ इसको. Okay, now this is the mixed grouping. तो जितने सीरीज में हमने कनेक्ट किए वो सारे एक दूसरे के साथ कैसे हैं बेटा? पैरेलल में, राइट? So we can say that equivalent EMF. बेटा ध्यान से समझिएगा. सो तो नहीं गए? नक्षत्र? Yes, sir. So what we can write, NE by NR plus NE by NR and so on, right? And the resistance is 1 by NR plus 1 by NR and so on. क्या क्लियर है ये? अब समझिए. Yes, sir. ये n कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग इज, so we can say E by R plus E by R and so on. But ये अब आप एक चीज समझिए कि ये रिपीट हो रहा है E by R, E by R, E by R, right? और नीचे आ रहा है 1 upon R, sorry 1 by NR minus 1 upon NR, right? ये this is something which is repeating itself, right? So now what we can do, we can say कि यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट EMF है, that is E by R plus E by R plus E by R, ये आएगा. They all are connected in a parallel combination M times.
ये कैसा कनेक्टेड बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज फॉर m टाइम्स। तो देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ m, बिकॉज n तो कैंसिल हो गया, राइट, बचा क्या, m times of e by r, because it's a parallel combination, divided by m times of n by m by nr, because ये जो रिपीटेशन हो रहा है that is for m times, yes or no, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलिए। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा बेटा, n टाइम्स ऑफ e आएगा, यस और नो, जल्दी बताइए, इक्विवेलेंट ईएमएफ n Yes, टाइम्स sir. ऑफ e आएगा। Yes, sir. समझ में आया Yes, सभी sir. को? And if Yes, we sir. now talk about the equivalent resistance, तो equivalent resistance मतलब कि ये आपका equivalent resistance होगा 1 by R equivalent is equals to 1 by R equivalent is equals to M by NR. So R equivalent को हम क्या लिख सकते हैं? We can write R equivalent is equals to NR by M. Yes or no? R equivalent क्या आ जाएगा? NR by M. बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। अरे yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा अब समझिए, तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाएंगे तो कैसा आएगा ये, let's say the equivalent circuit can be written as, this is EMF equivalent, internal resistance R equivalent, and this entire circuit is connected with resistor R. ठीक है, राइट, अरे yes or no? Now we know that EMF, ये जो equivalent EMF है कितना आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है n times of V. R equivalent कितना आ रहा है, तो it is coming NR by M. बोलो यहाँ तक क्लियर है, right? So here we can say that equivalent EMF is, E equivalent is n times of E, and R equivalent is n times of R by M. ठीक है, आप समझिए। Let's say if we close the switch, मान लीजिए बेटा हमने क्लोज किया स्विच, तो करंट I will start flowing in this circuit, yes or no? तो करंट I को हम लिख सकते हैं क्या, I is equals to V by R, मतलब कि V कितना है, that is equivalent EMF and total resistance. So total resistance is R equivalent plus capital R. ये क्या आ जाएगा, R equivalent plus capital R. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So we can say current I is equals to, what is the value of this, equivalent is n times of V. Current I is equals to, equivalent कितना आ रहा है बेटा, n times of V, and R equivalent is n R by M plus capital R. ठीक है, तो I is equals to क्या आ जाएगा, we can say n times of V by n R plus M times of R by M. तो ये M ऊपर आ जाएगा, right? तो what we can say, current I is equals to, ये M ऊपर आ जाएगा, तो let's say M times of NE by
एन आर प्लस एम आर। क्लियर है? अरे हाँ या ना? कोई डाउट हो तो बताओ पहले। Yes, sir. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज इफ मान लीजिए ये करंट आया बेटा, मिक्स ग्रुपिंग के लिए करंट की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, राइट? अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, सपोज एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉल आर और आर की वैल्यू गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम एंड एन, ठीक है? एम और एन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द करंट पासिंग थ्रू इट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट आपको कब मिलेगा? जब डिनोमिनेटर क्या होता है? मिनिमम होता है, राइट? तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि करंट I इज इक्वल टू हमारे पास में m टाइम्स ऑफ NE बाय, लेट्स से करंट I इज m टाइम्स ऑफ NE बाय MR प्लस NR प्लस M into कैपिटल R। ये हमारे पास ऑलरेडी है। Now the question is, let's say small r and capital R are given and find the relationship. Let's say if small r and capital R given, so find the relation between, so find relation between M and N such that current I through battery is maximum। क्या यहाँ तक क्लियर है? Now here current I is M times of NE by NR plus MR। अब हमें यहाँ पर बेटा एक इक्वेशन बनानी है जिसकी हेल्प से हम ये कहेंगे कि करंट I जो है वो मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होता है, राइट? So for that what we can say, let's say current I is equals to M times of NE, M times of NE by under root of MR minus NR whole square plus, एक मिनट इसको देखना, करंट I is equals to M times of NE। ये बेटा ध्यान रखना, we are forming one equation। फॉर्म करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अंडर रूट ऑफ MR माइनस अंडर रूट ऑफ NR का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ MR NR क्या ये स्टेप क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया वो पहले पूछ ले ये वाला स्टेप। that current I is equals to M times of NE by NR plus MR की जगह हमने ये कैसे लिखा है? जिसको नहीं समझ में आया पूछ ले पहले। अरे आ गया समझ में? नहीं आया। हाँ, नहीं आया समझ में? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। मान लो बेटा हमें ये इक्वेशन यहाँ पे लानी है, ठीक है? तो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? पहले तो मुझे बताओ। ये मैंने इक्वेशन इसके ऊपर बनाई, क्या उसमें और इसमें कोई फर्क है? ये सेम ही चीज लिखी है, सिर्फ उसको तोड़ मरोड़ दिया है थोड़ा सा। बोलो जल्दी से, सेम ही लिखा है। क्या सेम है ये चीजें? क्या सेम है? यस और नो? बेटा यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, लेट्स से, चलो मैं बता देता हूँ फिर से। ये अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ MR माइनस स्क्वायर रूट ऑफ NR का स्क्वायर, ठीक है? मान लेते हैं कि ये आपका A और B है। सपोज लेट्स से दिस इज A, लेट्स से दिस इज B और दिस इज A, B प्लस A लिखा है, ठीक?
अब अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर b माइनस ए, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, रूट b का स्क्वायर क्या होगा, b माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट a रूट b प्लस रूट a का स्क्वायर कितना आएगा, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट a b। अब आप एक समझिए कि माइनस और ये प्लस कैंसल, तो बचा क्या, b प्लस a। तो क्या वही तो b प्लस a आ रहा था हमारे पास पहले भी, और वही बाद में आया। बोलो आई बात समझ में? हाँ यस सर। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए सब किया है, राइट। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि करंट मैक्सिमम होने की कंडीशन होती है डिनोमिनेटर मस्ट बी मिनिमम। सो से लेट्स से फॉर I maximum, for I maximum, denominator must be, for I maximum, denominator must be minimum. Denominator must be minimum when we can say square root of mr minus square root of nr equals to 0. Square root of mr minus square root of nr equals to 0. तो क्या हो जाएगा, m times of r और ये हो जाएगा n times of r। बोलो यहाँ तक क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब आप समझिए m by n is equals to कैपिटल R by स्मॉल r। क्या यहाँ तक क्लियर है? अरे सॉरी, m by n is equals to स्मॉल r by कैपिटल R। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। m by n is equals to स्मॉल r by कैपिटल R। अगर कोई भी अननोन गिवन है तो क्या हम वो अननोन फाइंड कर सकते हैं m n स्मॉल r by कैपिटल R के रिलेशन से, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए कि अगर आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, सो नाउ वी नो दैट फॉर द मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट कंडीशन क्या है कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 0। फॉर मैक्सिमम करंट दिस शुड बी 0, यस और नो? सो इफ वी से द मैक्सिमम करंट I maximum equals to MNE by this is let's say square root of mr minus ये, अच्छा ये वाला पार्ट 0 तो बचेगा क्या, ये तो 2 root mr nr, so let's say 2 times of under root of mr nr। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. अब समझिए अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, समझिए रूट m इंटू रूट m इंटू रूट n इंटू रूट n इंटू e डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ m अंडर रूट n अंडर रूट कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब आप समझिए रूट m रूट m रूट n रूट n कैंसिल हो गया, तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आंसर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ m n इंटू e बाय 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू r। बोलो क्लियर है? तो ये हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम करंट। क्या मिल गया, मैक्सिमम करंट। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubt here बेटा? No, sir. नो सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। किसी को भी कुछ भी पूछना हो जल्दी पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कि हम एक न्यूमेरिकल करते हैं मिक्स ग्रुपिंग वाले कंडीशन पे ही, ठीक है। या फिर चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, जिसमें कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन आ सकती है, राइट। सो लेट्स से
हमने एक सर्किट लिया बेटा, सर्किट कैसा है, ये एक सेल है जिसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, ओके ये एक और कैपेसिटर, अरे सॉरी, एक और सेल एंड रजिस्टर, देन यहाँ पर एक सेल ले लिया, रजिस्टर ले लिया, एंड इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान रखना ठीक है। क्वेश्चन जो है अब देखिए, जैसे 1 वोल्ट सेल है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट, each resistor is having a 1 ohm resistor and let's say this resistor is having a 3/4 ohm resistance, और ये बेटा आपका स्विच हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पहले, अरे किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? No, sir. ना, No, the sir. question is, now the question is find the current in each branch. क्वेश्चन क्या है, find the current, find the current in each branch. Okay, so let's say हम एक काम करते हैं, पहली चीज तो यहाँ पर आप KCL या KVL भी अप्लाई कर सकते हो, बट इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट करना उसको। तो हमारे पास में जो हमने रिसेंट मेथड यूज किया है कि with the help of cells we can form a battery, right, and here we can say it's a parallel grouping। तो parallel grouping में बेटा क्या फॉर्मूला होता है, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको E1 ले रहा हूँ, दिस इज E2 एंड दिस इज E3 एंड दिस इज E4, सो आप देख सकते हो E3 वाला जो पार्ट है सेल, दैट इज ऑपोजिट पोलैरिटी, इट हैज ऑपोजिट पोलैरिटीज। अगर उसके पास ऑपोजिट पोलैरिटी है तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, यस और नो। तो लेट्स से फॉर द इक्विवेलेंट EMF वी कैन से, for the equivalent EMF we can say E1 by R1 plus E2 by R2। अब आप यहाँ पे देखो तीसरा, क्या इसके पास ऑपोजिट पोलैरिटी है, यस और नो, तो क्या कहेंगे माइनस E3 by R3 and the last one is E4 by R4, ठीक है, डिवाइड बाय 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and plus 1 upon R4, ठीक है। अब आप समझिए E1 by R1, so what is E1, तो E1 की वैल्यू है 1, रेजिस्टेंस इज R1, E2 is 2, resistance R2, E3 is 3, resistance R1, E4 is 4, resistance R1, divide by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, so we can say 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1, लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। Yes, sir. Now we can say that equivalent EMF can be written as, देखो ये 1 plus 2 3, 3 minus 3 0, 3 minus 3 0 plus 4, तो ये आया ऊपर plus 4, डिवीजन में 1 plus 1 plus 1 plus 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 by 4, अरे ये 4 हो गया ऊपर, राइट, कितना आ जाएगा 4 नीचे की तरफ। अगर आप R इक्विवेलेंट लिखेंगे, लेट्स से अगर यहाँ पे मैं बेटा लिखता हूँ, चलो पहले R इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ, तो 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 by 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कितना हो रहा है इक्विवेलेंट EMF, तो ये हो रहा था बेटा 1 वोल्ट,
इक्विवेलेंट ईएमएफ 1 वोल्ट। सर और यस बेटा, सर आर इक्विवेलेंट 4 ओम नहीं आएगा? क्यों? ओके सर, माय मिस्टेक। ओके 1/r है ना बेटा। हाँ यस सर। अब समझिए, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसकी बैटरी ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से हियर वी हैव 1 वोल्ट एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 1 वोल्ट का हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1/4 ओम का। एंड यहाँ पर हमने लिया है एक स्विच एंड दिस स्विच इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 3/4 ओम। नाउ लेट्स कनेक्ट इट। कनेक्ट करने पे करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, करंट फ्लो होगा, यस और नो? तो करंट Yes, कितना sir. फ्लो होगा? तो लेट्स से करंट I is potential difference is E by total resistance small r plus capital R. तो करंट I is equals to 1 by small r की वैल्यू कितनी है? तो 1/4 और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? तो 3/4। तो 1/4 plus 3/4 is 1, तो करंट इज ऑल्सो 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes. अब बेटा आप एक चीज समझिए, जब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर मतलब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। अब यहाँ पर जब करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, यू नीड टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो सबसे पहले चीज तो हमें ये मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, आपको पता चल गया कि करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस 3/4 ओम रेजिस्टर, इसका करंट आ रहा है 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बताओ? अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका रेजिस्टेंस ये है 3/4 और ये है 1 एम्पियर, तो बेटा ये और ये इस दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमारे पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस कितना आएगा? VAB इज इक्वल्स टू 3/4 into 1। VAB कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स अगर आपको निकालना है, VAB is equals to I into R होता है कि नहीं होता? बोलो। तो I is 1 and current resistance 3/4, तो कितना? 3/4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4 वोल्ट होगा, राइट? अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पर हमने VAB मतलब 3/4 वोल्ट लगाया, तो ये A, ये B, ये A, ये B, ये A, ये B, ये A और ये B, इसका मतलब सभी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 3/4 वोल्ट। अरे हाँ या ना? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम इस सर्किट में जाएंगे, देखो इस सर्किट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो VAB इज इक्वल्स टू E1। अच्छा, करंट की डायरेक्शन समझिए। अब बेटा करंट क्लोज करने के बाद करंट की डायरेक्शन में मिल रही I। अब करंट अंदर की तरफ आ रहा है, करंट कहाँ की तरफ आ रहा है? अंदर की तरफ। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि ये जो करंट है, लेट्स से दिस करंट इज X, ये करंट हो गया Y। अब यहाँ पे देखो आप, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल चेंज है, ऑपोजिट पोलैरिटी है, तो इसका करंट की डायरेक्शन मैं ये ले लेता हूँ और इसमें तो यही रख रहा हूँ W। बोलो यहाँ तक क्लियर है? पहले तो ये बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? अरे हाँ या Yes, ना? yes. ठीक है, अब समझिए। Potential difference between point A and B is equals to IL, that is 3/4 volt. अब यहाँ पर अगर हम करेंगे इसे, लेट्स से अब समझिए, तो मैं क्या लिखूंगा? VAB, ठीक है, कितना आ रहा है? 3/4। अब आप A से B की तरफ जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? A से B की तरफ। तो क्या लिखेंगे कि VAB इज इक्वल्स टू, ये बेटा कितना है? E1 माइनस X, X इज द करंट, तो X इंटू मतलब I इंटू R, I की
अगर मैं x की जगह i ले लूं तो क्या लिखूंगा, i इंटू r1, i1 r1 लिखूंगा माइनस i1 r1। तो यहाँ पर बेसिकली e1 इज आपका 1, i1 मैंने आपको x के नाम से लिया और r1 की वैल्यू है 1, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अरे करंट तो हमें फाइंड करना है, दैट इज x, और r1 की वैल्यू कितनी ली है बेटा हमने, 1 ओम लिया, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया 1। पोटेंशियल अक्रॉस a एंड b इज गिवन, दैट इज 3/4 वोल्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस 3/4, तो 4 माइनस 3/1, तो 1/4 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 होगी कि नहीं होगी, बताइए जल्दी से। यस सर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द फर्स्ट ब्रांच x is equals to 1/4 एम्पियर, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। तो फॉर द सेकंड वन, अब जैसे इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, दैट VAB is equals to E2 minus IR2। तो VAB is equals to A2, तो पहली चीज तो VAB कितना है, तो बेटा 3/4 वोल्ट है। A2 कितना है, तो 2 वोल्ट है। IR2 मतलब I की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, वो हमने कंसिडर किया कि लेट्स से Y है और इनटू R2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अच्छा R2 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 1 है। तो Y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, y is equals to क्या आ जाएगा, 2 minus 3/4, 2 minus 3/4, तो 2 4 जा 8, 8 minus 3 is 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। बोलो क्लियर है, Yes. कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। अब बेटा तीसरे में जा रहे हैं, इसकी करंट की डायरेक्शन अलग है इसलिए ध्यान रखना, और पोटेंशियल का डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो वी कैन से VAB is equals to VAB is equals to, तो सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो लोड टू हाई जा रहे हैं, तो माइनस 3 वोल्ट माइनस जेड इंटू एक मिनट, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम और उसी डायरेक्शन में करंट लिया हुआ है, राइट। तो बेटा प्लस आएगा, फिर माइनस करंट हम नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस जेड। ये स्टेप जिसको समझ में नहीं आया वो पहले पूछ ले। ये स्टेप जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले सर पहले। वापस समझा दो ना एक बार। बेटा ये है कंडीशन हमारे पास में कि यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है 3 वोल्ट की, और इसके पास में एक रेजिस्टर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमने लिया है ये, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम तो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये मिला माइनस, तो लिखेंगे अच्छा पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का, ठीक। तो -3। अब यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन और क्या बोलते हैं, ये जो करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन और हमने जो लूप की डायरेक्शन ली वो दोनों कैसी है, ऑपोजिट है। अरे हाँ या ना, तो लिखेंगे यस सर। -1 is the resistance and Z is the current, -1 Z। तो लिख सकते हैं VAB is equals to -3 minus Z, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमें निकालना है Z is equals to क्या लिखेंगे, Z equals to लिखेंगे -3 minus VAB, ठीक है। तो -3 minus VAB, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या आ जाएगा, कितना आ रहा था बोलो, 3/4, राइट। Sir, -3 plus Z. एक मिनट, या सॉरी करंट की डायरेक्शन मैंने इसमें गलत दिखा दी है ना। यस करंट की डायरेक्शन ये है बिकॉज, तो ये प्लस जेड हो जाएगा, राइट।
जस्ट -3 प्लस जेड, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा VAB +3, तो VAB मतलब कि 3/4 +3, तो ये हो जाएगा 15/4। बोलो क्लियर है? Yes. राइट, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, 15/4 करंट फ्लो हो रहा है। अरे हाँ या ना, करंट कितना फ्लो हो रहा है, Yes. 15/4। अब आप समझिए एक और बच गया, कौन सा, एरा डब्ल्यू वाला। अगर बेटा अब हम इसकी बात करें, इसमें भी वही VAB, लेट्स से VAB इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, सामने से आ रहा है तो -W, दिस इज 3/4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस W, तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 - 3/4, तो 4 4 16 -3/4, तो W इज 13/4 एम्पियर। बोले कोई डाउट हो तो कहीं पर किसी को बताइए, है किसी को कोई डाउट? नो सर। अरे हाँ या ना, कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भाई, No. पक्का? ये मतलब आ गया इधर, हाँ ये सर फाइनल आंसर आ गया इधर। हाँ हाँ, ये रहा ना, देख हमें क्या क्या पर सर लिखना था। इंडिया में सर ऐसा करंट हो कैसे सकता है, क्योंकि सर टोटल सर्किट में तो सर 1 एम्पियर का करंट ही फ्लो हो रहा है ना, और हाँ इसका अगर सर इंडिया जिसका सम करेंगे तो 1 एम्पियर से ज्यादा आता है। एक मिनट, सर इसमें क्या हमें Z वाला जो है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा वैल्यू? अब कान खोलकर समझो, यहाँ पर आपने करंट की डायरेक्शन क्या देखी है, देखो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि करंट अंदर की तरफ आ रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, राइट। 3/4 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें से करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और वो करंट अंदर आ रहा है, यस और नो। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे हमने कहा कि x, y और w इन तीनों की डायरेक्शन सेम है, और z की डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं? अरे हाँ या ना? Yes sir. अगर मैं इसकी डायरेक्शन भी यही कर दूंगा तो फिर z की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, z का 15/4 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है, 15/4 एम्पियर, तो -15/4 एम्पियर हो जाएगा अगर मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो। बोलो, Yes. अरे भाई समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। नहीं समझ में आया तो फिर Yes से sir. समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, समझिए कि हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट में ये 1 एम्पियर करंट आया, ठीक है। अब इसमें ये ये और ये डायरेक्शन देख रहे हो आप कैसे लिए मैंने, ठीक है। यहाँ पर x है, y है, z और ये w, ये 1/4 है, ये 5/4 है, ये 15/4 है, और ये 13/4 है। अब अगर आप किसी पॉइंट को जंक्शन मान लो तो इनकमिंग करंट इज कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पियर। क्यों 15/4 नहीं आएगा, वो भी तो आ रहा है ना, ये भी तो आ ही रहा है उसकी तरफ, बोलो। अरे
यस और नो? जल्दी बताइए। देखते हैं, बोला करो जल्दी से। क्या डाउट क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी बोलिए। यस सर। अरे भाई ये कह रहा हूं कि अगर मान लो ये करंट आई है, ये करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, KCL अप्लाई करोगे तो क्या करोगे कि कोई जंक्शन कंसीडर करोगे जहां पर करंट आ रहा है, तो आने वाला करंट कौन सा है? I3 आ रहा है और I1 आ रहा है, सॉरी I3 और I ये दोनों ऐड हो रहे हैं और इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I4। तो वही तो किया है यहाँ पर, देखो। और अगर आप इस जेड की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाहते हो तो फिर -15/4 ऐड कर दो उसको, तो वो 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? ये तो कुछ है ही नहीं इतना बड़ा मुद्दा जो आप समझ नहीं आ रहा है आपको। यस सर, क्लियर हो गया।